right. Okay, so I will connect to Exchange. Okay, it is getting logging to Exchange. So okay, no issue. So just let it give 2 minutes for that. So till that time, I will explain you the remaining like resource mailbox and shared mailbox, right? Oh, Harshal, am I audible? You are audible. Okay, so you know the what is the resource mailbox? Uh, Resource room mailbox and means device. Sorry, Yes, what yeah, equipment mailbox and equipment? room mailbox. Yes. So basically, that is actually only for like booking assistant. You can say, if I want to book any conference room, right? That time we require like resource room or mailbox room. No, not mailbox room, room mailbox. Like conference room is there, I want to book one conference room between 8 to 9 p.m. So then I will send a one meeting request to that mailbox, room mailbox. So then it will see the slot whether it is a like available or not. Accordingly it will whether it will accept or decline that meeting which is sent from me, right? So that Yeah. is a called a room mailbox. And one more mailbox is there, that is the equipment mailbox. That is actually same, it will be like room mailbox only, but only that is like if it is related to projector room, recording room, or maybe screen, big screen, something like, and telephone usual equipment are there in that room, that is called equipment door. That is a little bit different, nothing more. Most all properties, everything will be same like room mailbox. Now it comes to the shared mailbox. What is the shared mailbox? Do you have any idea Shared mailbox why you are using that shared mailbox? means it is like delegated mailbox, no? Yeah, like same like that only. But what is the purpose? Why do we use that shared? Because we have the personal mailbox, right? Like Yes. once you onboarding, you are able to use your mailbox, right? But what is Yeah. the requirement shared mailbox? Why do we use the shared mailbox? Anything? Means to know about old mails. Might be. Okay, no. So shared means simple, you are sharing the mailbox to multiple people. Like for example, I will give a good example. In HR team, like maybe 4 to 5 HR representative or executive working, right? So Yes. normally they are taking the interviews from candidate, then they will like no receive mails, update, all these things will happen. But unfortunately sometime one HR is not available, she is dealing with the one candidate interview, all these things. So she may be gone on uh, If she left organization that time. organization or on emergency leave. Just a moment. Huh? So she might go on emergency leave, right? Sometime due to Yes. some reason. So that time, so who will look her mails and respond to that candidate? It is not possible because she's using her personal mailbox, right? Yes. So in that scenario, maybe that candidate will be think that okay, she's not like responding, or maybe some reason that is misunderstanding will happen, or that what is the going process will be stopped there only. That's why what we will do, we will give one shared mailbox. HR team, something you can take any, or recruitment team, something like that, anything you can give the shared name, that is not matter. We have to take as per our logic. So then I will give the access to all 5 HRs. So what it will happen, that mailbox will be mapped to their personal Outlook client, right? So Oh, anybody can see and anybody can.
reply to that mails which is coming from the candidates, right? Any available person in 5 person, yeah, 1 or 2 may be available, right? So they can, anybody can like no check and anybody can respond. So that is a Sir, shared mailbox. So we will, one minute, yeah, sir. Sorry. sure, It okay. is the same like group mail ID, na? Then Group mail Office ID I 365. didn't get actually. Group mail means what, I don't know Group actually. mailbox. Sorry, group mailbox No, group means distribution group you are trying to say. yes, yes. Yeah, that is Means also, OP 365 group means. yeah, yeah, it comes like Office 365 group only. But in shared mailbox is one more benefit is there. We don't require license for that. Okay, it is a Acha. free of license. Only we Means required. Yeah, means tell for me. OP 365 group we need license. Yeah, in a Oh. like if I am using the personal mailbox, then I required a license, right? That will cost license. If I am creating one personal mailbox for you, then I have to pay for that license, whatever Means amount in is there. exchange also we have specific limit means this much users we can create only. Correct, correct. Yeah. So if we have 1,000 license, right, in your organization, so you have to create 1,000 only. You cannot create more than that. If you want to create, then you have to again purchase the license. So, It will work like that. Exchange Online or Office 365. means by default it is for exchange server 1000 users created. Yeah. So you can add also if you want as per your requirement. If you are in organization, you have 2,000 users, 3,000, 4,000, depend upon your requirement. You can add license and you have to bear the cost for that. ओके सर और Okay. एक क्वेश्चन था हाँ, वो बोलो हम ना. डेलीगेट मेल अगर सपोज हम मेल आईडी को डेलीगेट करते हैं किसी और को तो हम्म, वो क्या करते हैं वो भी मेल सेंड कर सकते हैं पर वो जो सेंड जो जिस मेल आईडी का सपोज डिपार्टमेंटल बेस में मेल आईडी है उसका डेलीगेशन तो दिया है आपको आप सेंड कर रहे हो हाँ, पर वो समझ में नहीं आएगा ना सेंड आइटम्स में किसने अभी 4-5 लोगों को कर दिया है तो और हाँ, जो उस मेल आईडी के सेंड आइटम्स में नहीं आएगा किसने किया है वो सिर्फ उसके ही सेंट आइटम्स में दिखेगा ना राइट राइट, उसका ही सेंड आइटम में देंगे बट बाय डिफॉल्ट वाइज. अच्छा पर वो एक डायरेक्ट जो डेलीगेटेड जो डिपार्टमेंट बेस मेल आईडी उसके सेंट आइटम्स में भी आ सकता है क्या कर सकते नहीं हैं क्या आता है वैसा. नहीं आता, एक मिनट, जस्ट मूव. क्योंकि क्या है सर बाकी के यूजर है ना हेलो ओके, सॉरी. या मतलब वो इट विल वो जाएगा जिसने भेजा उसी के सेंट आइटम में जाएगा. वो शेयर्ड मेल बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा. करेक्ट. हाँ नहीं पर क्या है कि जो डिपार्टमेंट हमारा तो वैसा ही मेल आईडी है हाँ, ठीक है तो हमारे सेंट आइटम्स में आता है पर बाकी के यूजर्स के लिए नहीं है तो मैंने पूछा था L2 वालों को हाँ, कि बाकी के यूजर्स तो कॉल करते हो पूछते हैं कि हाँ. इस मेल आईडी के सेंट आइटम्स में नहीं आता सिर्फ यूजर के सेंट आइटम में दिखता है फिर हमारा क्यों दिखता है वो बोलता है कि हमने कमांड रन किया है कुछ तो ऐसा बोलते हैं पर एक्चुअली. उसमें हमारा दिखता है लेकिन सर वही तो मुझे हाँ भी क्या. अच्छा. हाँ ओके, देखना पड़ेगा कुछ तो उसका कुछ सेटिंग है क्या. बट डिफॉल्ट नॉर्मली कैसा होता है, लॉजिक अगर हाँ देखे जाएंगे तो जिसने भेजता है ना, जैसा कि आपने हाँ भेजा वो शेयर्ड मेल बॉक्स भी आप तो आपके ही सेंट आइटम में जाना चाहिए. एक्चुअली डिफॉल्ट प्रोसेस ऐसा ही है. क्योंकि अगर उसी के फिर मालूम कैसा पड़ेगा किसने भेजा बोल के 5 जने में, करेक्ट ना. लॉजिक हाँ ऐसा हाँ है. वही बट पर नहीं अभी. बाकी के किसी के लिए भी नहीं किया है सिर्फ हमारा जो मेल आईडी है ना हाँ उसी के क्या. लिए किया है पर्टिकुलर हाँ यूजर बहुत क्वेश्चन करते हैं पर ये हमें ठीक से बताते नहीं नहीं, ऐसा क्या है किया क्या. है दूसरा ऑप्शन ऐसा हाँ हो सकता, मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से ऐसा किया होगा. वो आउटलुक प्रोफाइल बनाएगा उसका शेयर मेल बॉक्स का अलग सा. जब अगर करते हैं तो वैसा आता है. समझे मेरा पॉइंट. मैं ऑलरेडी आपको समझाता हूँ. हाँ मतलब समझ लो, आपका हर्षल बोल के एक आउटलुक प्रोफाइल है, ठीक है. हाँ आपने और एक अलग सा प्रोफाइल आपको आता है ना, पॉपअप आता है ना प्रॉम्प्ट करने हाँ के लिए. हाँ दो हाँ, प्रोफाइल हाँ हाँ, ये एक शेयर मेल बॉक्स अगर प्रोफाइल का तो उससे लॉग इन करेंगे ना, आप मेल भेजेंगे तो उसी में जाएंगे सेंड आइटम में.
ऐसा ये पॉसिबिलिटीज है। फिर भी मैं तुम जो बोल रहे मैं थोड़ा सा उस पर देखता हूँ, वैसा कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ मेरे को हाँ ठीक। नजर, ठीक है। तो विल ट्राई दैट। हाँ ठीक है, तो अभी ये सर्वर अप हुआ, देन आई विल एक्सचेंज एडमिन कंसोल ओपन करता हूँ। और ये माइक्रोसॉफ्ट का सबके लिए सेम ही रहता है ना, मतलब या कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या? किस चीज का? मतलब वो उनका कुछ सेटिंग बीटिंग कुछ नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सभी के लिए सेम रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन सेम ही लेवल में थोड़ा रहेगा? बहुत पॉलिसी रहेंगे, जैसे कि रिटेंशन पॉलिसी हुआ, कुछ एक्सेप्टेड डोमेन्स हुआ या ब्लॉकिंग हुआ, ये सब थोड़ा और डिफरेंस रहेगा। बट जो फ्यूचर जो फंक्शनलिटीज रहता है ना मेल बॉक्स का वगैरह, ऑलमोस्ट ऑल सेम हाँ रहता है, उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ वही ना। हाँ, वो वो आप थोड़ा, मैं जो बोला ना वो प्रोफाइल बनाया है क्या, वो भी थोड़ा सा वो एक पॉइंट देखो, फिर मैं भी देखता हूँ कुछ मिलता है क्या उसका इन्फो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ और शेयर मेल बॉक्स का सेंट आइटम्स में सब किसने भी शेयर ये किया तो वो दिखेगा, इतना उसका फायदा है यही है हाँ ना? हाँ, वो दिखेगा, राइट, हाँ। और वो मतलब उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, शेयर फोल्डर मतलब शेयर मेल बॉक्स के, हाँ तभी करेक्ट, दिखेगा, डायरेक्ट वो देखिए, पॉपअप में आएगा ना? हाँ एग्जैक्टली, हाँ। और इनबॉक्स में वैसा। इनबॉक्स तो में सर नहीं है, उसके शेयर्ड मेल बॉक्स पे इसमें जाना पड़ेगा उसका जो, मतलब मतलब आपको अगर एक्सेस है तो नॉर्मली वो आउटलुक प्रोफाइल में आपका वो भी मैप होता है, मल्टीपल मेल बॉक्स दिखेंगे नीचे आपको वन बाय वन, तुम्हारा मेल बॉक्स के बाद वो नीचे ऐसा मैप होते जाएंगे। अभी क्या मोर देन वन भी अगर आपको एक्सेस है तो वहाँ पे मोर देन वन प्रोफाइल बनेंगे आपको ऑटोमेटिक। उसमें एक क्या रहता है, मैपिंग ऑटोमेटिक, एक ट्रू एंड फॉल्स रहता है। अगर ट्रू करेंगे तो ऑटोमेटिक मैप होता है, फॉल्स रहेगा ना से वो, फिर क्या हो जाएगा, वो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ट्रू ही रहता है। मतलब कहाँ पे मतलब वो? अभी वो ऑटो मैपिंग बोल के एक कमांड, गेट मेल बॉक्स एक्सेस का जो रहता है ना, ऐड हाँ परमिशन का, वहाँ पे लास्ट में ना ऑटो मैपिंग बोल के एक कमांड, अगर आपने गूगल पे भी सर्च करेगा, कमांड फॉर प्रोवाइडिंग डेली एक्सेस ऑन शेयर्ड मेल बाय एक्सेस बोल के आप डालेंगे ना, एक आपका कमांड का फॉर्मेट आता है, ठीक है। हाँ। उसमें मतलब आपको जैसा नॉर्मली कैसा है, आपने एक्सेस दिया तो वो आउटलुक को, एक मिनट, हाँ, एक, ओके, तो वो उसमें जैसा एक्सेस देंगे ना अपन, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपका वो बन जाएगा, मैप होएगा, जैसे आउटलुक आपने प्रोफाइल को लॉन्च करे तो आपके नीचे ऑटोमेटिक दिखेगा, ठीक है। हम्म। तो उसको हम बोलते हैं ऑटो मैपिंग। ऑटो मैपिंग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, क्योंकि लोगों को जैसे एक्सेस देंगे ना जिसको भी, तो वो और मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको वहां पे पॉपअप प्रोफाइल करेगा नीचे उसके प्राइमरी मेल बॉक्स के नीचे, ठीक है। अच्छा नहीं, हमारे अच्छा शेयर मेल बॉक्स का नहीं, हमारा सेट डेलीगेटेड मेल बॉक्स का भी ऑटोमेटिक आता नहीं ना? उसका ऑटोमेटिक भी नहीं ऑप्शन रहता है? आता, हाँ ऑटो मैपिंग उसको डेलीगेट मतलब कैसा, मेरे को और टाइम समझो। सपोज डिपार्टमेंट बेस्ड मेल आईडी है हमारा, ठीक है, हाँ हाँ, उसको हम डेलीगेशन दे रहे हैं दूसरे मेल आईडी को, तो ओके, उनको मैन्युअली ऐड करना ही पड़ेगा, मतलब हाँ अनदर मेल बॉक्स वहां से। करेक्ट। तो तो वहां अगर पे कुछ। फिर ऑटो मैपिंग जो है ना, ऑटोमेटिक हाँ जो मैपिंग होता है वो फॉल्स रहेगा, मतलब उसके लिए वो मैन्युअली करना पड़ता है। जिधर ऑटो मैपिंग फॉल्स रहेगा ना, वहां पे मैन्युअली आपको ऐड करने पड़ेगा एक्सेस जैसा मिलने के बाद, ऐसा है। वो कमांड थ्रू ही होगा, ऐसा हाँ, ऑप्शन नहीं कमांड है के थ्रू ही इसका? होएगा, चाहे तो मैं तुमको कमांड तुमको शेयर करता हूँ। जब भी एक्सेस देते हैं ना,
तो वो कमांड हाँ में हाँ। ट्रू या फॉल्स का ऑप्शन रहता है। मैं तुमको चाहे तो व्हाट्सएप, मतलब डायरेक्ट मेल बॉक्स ओपन किया तो डायरेक्ट हाँ शेयर थोड़ा, हाँ मतलब थोड़ा टाइम के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारे आउटलुक प्रोफाइल में मैप होएगा, एक 5-10 मिनट में ऐसा। ऐड शेयर फोल्डर करने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। ठीक है। सो अभी हम कल मतलब ग्रुप्स तक देखे थे, आज रिसोर्स, राइट। हाँ रिसोर्स में जाएंगे। रिसोर्स में जैसा हमने अभी डिस्कशन किया, एक तो रूम मेल बॉक्स है, एक इक्विपमेंट मेल बॉक्स है। अपन एक हाँ क्रिएट करके देखेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम ऐसा बनेंगे, रूम मेल बॉक्स। ठीक है। हाँ। कॉन्फ्रेंस रूम, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए। ये रूम कहाँ सिचुएटेड है, कॉन्फ्रेंस रूम मुंबई, ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा ना देखने से ये किधर है कॉन्फ्रेंस रूम सिचुएटेड, वो हिसाब से थोड़ा लॉजिकली दे सकते हैं। मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अपने को लॉजिक नेम होना चाहिए, काम में आए जैसा। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ ओके, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज है, अपना ऑर्गेनाइज यूनिट अपने को डिफाइन करना, मतलब कहाँ पे वो क्रिएट होना चाहिए। मैं पुणे में रखता हूँ, नहीं तो डिफॉल्ट अपने हिसाब से ले लेगा। अभी लोकेशन है मुंबई देंगे अपन, अगर मुंबई ने सेलेक्ट किया, मुं- मुंबई। फोन अगर नंबर देना है तो दे दो, नहीं है तो भी छोड़ सकते। कैपेसिटी अपने को डिफाइन करना है, मतलब 5 है 10 है, तो मैं 5। तो क्या हो जाएगा, ये जो भी बुक करते टाइम ये इन्फो आएगा, तो उसको सामने वाले को समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है। ये एड्रेस बुक पॉलिसी है, और ये मेल बॉक्स डेटाबेस किस पे अपने को रखना है, तो ये ऑप्शन है। तो मैं अपने को यहाँ सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन आता है, तो ये डेटाबेस मैंने इसको रखता हूँ इसको। ठीक है। एड्रेस बुक पॉलिसी तो डिफॉल्ट है अपना, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट वही वहाँ पे पॉपअप होएगा। इधर सेव, से भी हम पॉलिसी कर सकते हैं क्या, क्रिएट नहीं ना नहीं एड्रेस बुक यहाँ से की? क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ या असाइन कर फिर सकते, जो भी क्रिएट हुआ है उसको अपन असाइन कर सकते। अभी ये कॉन्फ्रेंस रूम बन गया। ठीक है। तो अभी अपन इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं। ठीक है, अभी हमने बना दिया, इसको एडिट करता हूँ। ठीक है। अभी जनरल में तो कॉन्फ्रेंस रूम है मुंबई, ये लिखा है, ये ईमेल एड्रेस भी यही बन गया, कैपेसिटी वो सब ठीक है। अभी अपने को बुकिंग डेलीगेट्स में देखना है क्या ऑप्शन है। अभी बुकिंग मतलब एक एक्सेप्ट और डिक्लाइन बुकिंग रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली है, सेलेक्ट डेलीगेट विच हु कैन एक्सेप्ट और डिक्लाइन बुकिंग रिक्वेस्ट है। तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटेड है, मतलब आपको मैन्युअली बुकिंग जो आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, अगर 8 से 9 आपका बुकिंग है, तो अगर फ्री स्लॉट है तो ऑटोमेटिक उसको कंफर्मेशन भेजेगा, रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ आपका रूम बुक हो गया, मतलब। तो आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे किसी को तो डेलीगेट्स ऐड करना पड़ेगा, वो उसको वो रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है। तो वो फिर मैन्युअली एक्सेप्ट करना है, देखना है। तो बेटर हमारा रिकमेंडेड वे है डिफॉल्ट यही होना चाहिए, ऑटोमेटेड होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, समझ गए ना। हाँ ओके। अभी बुकिंग ऑप्शन में वो टाइम पीरियड वगैरह है, मतलब स्पेसिफाई व्हेन दिस रूम कैन बी शेड्यूल्ड, मतलब अलो रिपीटिंग मीटिंग। रिपीटिंग मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर मेरे कंटिन्यूशन 8 से 9 ऐसा करना है मंडे टू फ्राइडे, तो वो रिपीट करने के लिए अलो है या नहीं, ये वन टाइम ही है। तो रिपीटिंग अलोड है, मतलब मेरे को मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 कराना है, तो अपन ऐसा रिक्वेस्ट भेज सकते, तो वो बुक करेगा वो हिसाब से। ठीक है। हाँ वो ऑलवेज डिक्लाइन इफ द एंड डेट इज बिहाइंड दिस लिमिट। ऑलवेज डिक्लाइन एंड डेट इज डिफरेंट, मतलब जो भी एंड डेट होता है 180 डेज का है मिनिमम, मैक्सिमम 180 डेज, मतलब 6 महीने बाद, 6 3 180। ठीक है। हाँ तो 180 डेज से आगे का रहेगा तो वो डिक्लाइन करेगा। जैसे अपना टिकट रिजर्वेशन का भी 3 महीने का रहता है ना रेलवे का, उसके पहले बाद का नहीं देता है, मतलब चौथे महीने में अगर करने जा रहे हैं तो नहीं देता। उसकी तरह ये 7th मंथ में अगर आपने उतना पुराना करने जा रहे हैं एडवांस में, देन इट विल डिक्लाइन। हाँ। ठीक है। ये अपन डिफॉल्ट 180 डेज है, अगर अपन को इससे भी कम करना है, 30 डेज करना है, वो भी कर सकते हैं।
ज्यादा भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ज्यादा भी कम भी कर सकते हैं, नहीं ज्यादा कम कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट रिकमेंडेड इज दी 180 डेज। हाँ ठीक है, इतना कौन एडवांस तो नहीं करता है, 6 महीने पहले कौन करता है, 10 दिन 8 दिन पहले ही नॉर्मली करता है, करना है तो भी, बट वो एक रिकमेंडेशन दिया है। अभी मैक्सिमम ड्यूरेशन मतलब मीटिंग जो कितना चलना चाहिए, 24 आवर्स तक ही आपका मतलब कंटिन्यूएशन रख सकते हैं, 24 भी बहुत हो गया। मतलब अभी कोई सा मीटिंग मतलब जैसा अपन चलता है 6 घंटे 8 घंटे, उसी तरह उसका 24 घंटे तक का ड्यूरेशन है, उससे ज्यादा ये शेड्यूल नहीं कर सकते डिफॉल्ट। अगर चेंज करना है तो करो, कम करो ज्यादा करो, कुछ भी करना है तो करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक टेक्स्ट मतलब वो जब बुक करने के लिए मिलता है, दिस इज ए रूम equipped with or equipment with screen, कुछ भी आप ऐसा डाल सकते हैं। तो वो बुक करते टाइम उसको एक पॉप ऐसा देगा इन्फो अपना, मेल टिप्स बोलते हैं ना अपन, जब भी आप ये कांटेक्ट डालते हो तो एक पॉपअप करता है आउट ऑफ हाँ ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ ऐसा, तो उसी तरह ये आपको एक दे देगा, मतलब हाँ ये उसको समझ में आएगा ये रूम में स्क्रीन है ऐसा। ठीक है, हाँ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ये हमने अभी दिया, वो सिटी दे सकते हैं, मुंबई स्टेट, महाराष्ट्र, जिप कोड, पोस्टल कोड, वो जो भी ये एक्चुअली एरिया इसमें जब भी करते थे वो लोग करते, बट हमने यहाँ पे नहीं डाला कुछ भी, वो ये इन्फो है बाकी कुछ नहीं। और ईमेल एड्रेस हमने जो दिया था यहाँ पे, देखो ये कॉन्फ्रेंस रूम, हाँ हाँ, -mumbai@digisol.training, ये अपना प्राइमरी एसएमटीपी एड्रेस है। ठीक है, ये सेकेंडरी इसके लिए आया क्योंकि मेरा वो ऑफिस 365 के साथ बाइंडिंग है, उसके लिए ऑन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट भी ये आता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं आता है, वो एक ही रहेगा। ठीक है, हाँ मेल टिप्स वो सेम जो हमने वहाँ पे लिखा, कुछ भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, प्लीज अलो अप टू, ऐसा एक उसको एक मेल टिप्स जाएगा सामने वाले को जो भी मेल इसको भेजता है। करेक्ट, You can create multiple display when people send email. अच्छा मतलब उनको जाएगा। सामने वाले हाँ जो हाँ भी भेजता है इस रूम को, जैसा मैं ही भेज रहा हूँ तो मेरे को एक मेल टिप से दिखेगा, जाएगा उसको। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसको डिक्लाइन करना है या एक्सेप्ट करना है उस पर हाँ कर। हाँ हाँ, तो अभी ये है डेलीगेशन। डेलीगेशन इज लाइक सेम जो अपन सेंड एज, सेंड ऑन बिहाफ, फुल एक्सेस। अगर किसी को आपको डेलीगेट करना है ये मेल बॉक्स, ये रूम मेल बॉक्स, वो उसका मेल्स देखने के लिए जो रिक्वेस्ट आता है तो क्या करना है, या उसको रिस्पॉन्स करना है, डिक्लाइन करना है, ये कुछ करना है। अगर आप किसी को डेलीगेट करना है एक्सेस तो ये कर सकते हैं, नहीं तो फुल मेल बॉक्स एक्सेस भी देंगे तो उसको ये मैप हो जाएगा, फिर उसके रिक्वेस्ट आते सो सब कुछ उसको दिखेगा, उसको अगर रिस्पॉन्स करना है तो कर सकता है, जो भी करना है मॉनिटरिंग कर सकता है, अगर जिसको भी अपन डेलीगेट करते हैं ये मेल बॉक्स। करेक्ट, यस। तो ये डेलीगेशन का ऑलमोस्ट ऑल सेम है सभी का, शेयर्ड मेल बॉक्स हो या पर्सनल मेल बॉक्स हो। ठीक है, तो ये हुआ पर प्रॉपर। उसका हाँ, पासवर्ड लॉगिन तो नहीं कर पाएगा ना ये नहीं जो। मतलब एक्सेस देंगे तो ऑटोमेटिक मैप हो जाएगा ना, अच्छा अपना प्राइमरी मेल ये लॉगिन नहीं कर पाएगा बराबर एग्जैक्टली, बट तुम्हारा जैसा एक्सेस देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे को मैप हो जाएगा। करेक्ट, मतलब वो पहले वो डबल सर वो एडिट में जाइए एक बार। हाँ एडिट में, हाँ वो ऑप्शन था देखो ऐड करने का, जो किसको रिक्वेस्ट जाना चाहिए, एक तो मिनट, उनको किधर, उनको भी वो ऐड हो जाएगा। हाँ कहाँ वो पे बोल रहे हैं, डेलीगेशन में जाओ। हाँ डेलीगेशन में वो हम्म, ऑप्शन था ना एक, एक मिनट, कौन सा ऑप्शन बोल बुकिंग रहे डेलीगेट्स में। हैं, अच्छा बुक यहाँ पे, ओके। हाँ, हाँ ये यहाँ ओके पे भी यार। अपन ऐड कर सकते हैं, कौन मैनेज कर यहाँ पे पाएगा। अगर ऐड करते हैं हम, तो इनको मिल जाएगा या उनको ऐड हो जाएगा, मतलब वो नहीं, शेयर्ड मेल बॉक्स में ऐड ये हो क्या जाएगा। करेगा, इसको मेल जाएगा, अच्छा ये एक उसको एक रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब ये मॉडरेटर या इसके जैसा काम करेगा। मतलब वो जो रिक्वेस्ट आएगा ना, डिक्लाइन हाँ या हाँ ये जो बोलते हैं ना अपन, वो है ओके। उस एक्सेप्ट और डिक्लाइन वही कर तरह पाएगा। एग्जैक्टली, हाँ और वो डेलीगेशन वाला हाँ मतलब हाँ, कौन सा भी डेलीगेशन परमिशन दिया है तो उसको उसके जाए, हिसाब से उसको वो ऐड काम करेगा। हाँ, ऐड ही तो हो जाएगा मतलब उधर राइट उसको। राइट करेक्ट, तो इसका डिफरेंट वर्किंग है, उसका अलग है।
हाँ हाँ ठीक है, ये सिर्फ बुकिंग के लिए रिलेटेड है। वो बट रिक्वेस्ट वगैरह रीड भी कर सकेगा, देख पे, और वो रिस्पॉन्स भी कर पाएगा। ये अच्छा डेलीगेशन अलग है। The send as permission allows a delegate to send mail from this mailbox. The message will appear to have been sent by this mailbox owner. ये send on behalf का तो जैसा सेम आपको पता है behalf में आएगा। और ये full access, the full access permission allows a delegate to open this mailbox and behave as a mailbox owner। तो ये वो दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ तो अपन एक इक्विपमेंट, सेम इक्विपमेंट भी इसी तरह का रहता है, सिर्फ अपन क्रिएट करके प्रॉपर्टी जस्ट वेरीफाई करेंगे। जैसा मैंने क्या करूंगा, कैमरा रूम ऐसा क्या तो बनूंगा, मतलब कैमरा हाँ है उसके अंदर, इक्विपमेंट मतलब वही हो गया राइट। हाँ कैमरा रूम और हाइपन मुंबई, सेम अलियास भी, अलियास इज नथिंग बट ईमेल एड्रेस, जो अलियास में देंगे ईमेल एड्रेस बनेगा वो। ठीक है, ब्राउज हाँ अपना ओयू मैन्युअली अपने को सेलेक्ट करते नहीं तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट करेगा उसके हिसाब से, बट बेटर वी विल गिव दी अपना प्रेफरेंस देंगे कहाँ पे, और डेटाबेस भी प्रेफरेंस अपन देंगे। मेरे को ये डेटाबेस पे क्रिएट कराना है उसको, राइट। पॉलिसी बुकिंग एड्रेस बुक पॉलिसी डिफॉल्ट अपना जो है वो रहने दे। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ऑल दोनों का सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसका आइडेंटिफिकेशन जो है, ये रूम मेल बॉक्स है, इक्विपमेंट मेल बॉक्स है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने ठीक है, तो यहाँ पे हाँ कैपेसिटी नहीं दिया था मैंने, कैपेसिटी भी देख सकता हूँ। ठीक है, बुकिंग रिलेटेड सेम है देखो, एक्सेप्ट एक ऑटोमेटेड है एक मैन्युअल है। वो मतलब ओके, जो जो यूजर है उसको जाएगा क्या इतनी कैपेसिटी का हाँ हाँ ठीक है हाँ मेरा रूम हाँ, ऐसा? जब ये बुक करते टाइम उसको 5 का कैपेसिटी वो डिस्क्रिप्शन में बताएगा, 5 का लोग है बोल के। जब बुक हम्म, करेगा ना, वो अपन बुकिंग का भी देखेंगे एक बार में, कैसा आउटलुक से करते हैं। ठीक है, तो वहां पे 5 का मेंबर्स का बताएगा उसको, तो वो सोचेगा 5 ही है। अगर उसका 6 या 8 का रहेगा तो वो दूसरा रूम देखेगा, 10 वाला देखेगा, ऐसा 10 रूम का भी रहेगा तो। समझ गए ना? 10 रूम का रहेगा तो उसको मिल जाना चाहिए ना फिर दूसरा। नहीं नहीं नहीं, मेल नहीं जाएगा। जब भी आप बुक करते हैं ना, वहां पे हाँ इंफॉर्मेशन आएगा वो सब। आउटलुक में तुम ये मीटिंग रूम डालेंगे ना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताएगा ना 5 नंबर्स का बोल के। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, हाँ बुकिंग के टाइम में बताएगा, हाँ हाँ वो इंफॉर्मेशन में आएगा। मैं वो हम जब भी ये सब होने के बाद एक आउटलुक क्लाइंट में चेक करेंगे तो कैसा ये हम्म, काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कैसा वो दिखता है इन्फो। राइट, क्लियर? हाँ ठीक है, तो ये डेलीगेट्स का ऑटोमेटेड एक मैनुअल है, वो तो हमने देखा भी। ये सेम बुकिंग ऑप्शन भी वही है, अलो रिपीटिंग मैसेजेस, ऑलवेज डिक्लाइन इफ द एंड डेट इज बिहाइंड लिमिट, और ये 180 डेज का, और 24 आवर। सेम ये भी आप कुछ भी एक कस्टमाइजेशन टेक्स्ट रख सकते हैं, वो सामने वाले को जिस जो भी भेजता है उसको जाएगा। दिख रहा है ना? कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, जो लोकेशन, फोन और स्ट्रीट और थोड़ा एड्रेस, आपको जो भी डिटेल्स अपने को डालना है यहाँ पे डाल सकते। कंट्री, रीजन, पोस्टल कोड, ये सब कुछ। ईमेल एड्रेस तो ऑटोमेटिक अपना आ गया, ये हमने क्या नाम दिया वही, अलियास में जो दिया वही यहाँ पे आ गया, कैमरा रूम माइनस या हाइफन मुंबई @digitaltraining.in, ये आ गया। और मेल टिप्स भी जो अपने यहाँ पे ब्लैंक है, अगर कुछ देना है तो अपन मेल टिप दे सकते हैं। और मेल बॉक्स डेलीगेशन भी सेम है, सेंड एज, सेंड ऑन बिहाफ, और फुल एक्सेस, जो अपना रूम मेल बॉक्स का जिस तरह है उसी तरह सेम, मतलब पूरा प्रॉपर्टीज उसकी ऐसा ही सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसका आइडेंटिफिकेशन जो बोलते हैं ना, ये रूम मेल बॉक्स है, इक्विपमेंट मेल बॉक्स है। करेक्ट, yes। राइट। तो अभी हम जाते हैं कॉन्टेक्ट्स में। यहाँ पे रिसोर्स में कुछ डाउट है आपको? नहीं ना? सर वो सिक्योरिटी ग्रुप का वो रह गया था ना शायद हमारा। सिक्योरिटी ग्रुप तो एडी में आता है ना, यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ही आता है। सिक्योरिटी इज नथिंग बट अपना
परमिशन फाइल सर्वर पे एक्सेस वो बोल रहे ना डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वो भी रहेगा ऐसा है। यहाँ पे। एक मिनट, ये वाला बोल रहे क्या? हाँ हाँ, सिक्योरिटी और डायनामिक। डायनामिक मतलब वो रूल्स की ऑटोमेटिक वो डिसाइड करेगा। अभी टेस्ट ग्रुप एलियास, ठीक है। हाँ वो अपन कहीं पे भी ओनर किसको भी अपन ऐड कर सकते हैं। एक्सचेंज एडमिन को करूंगा मैं। अभी अभी कैसा है यहाँ पे, डायनामिक मतलब आपको रूल डिफाइन करना है किसको ये लेना है, ये ऑटोमेटिक लेता है। तुम जिस तरह यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे क्या है, ऑल रिसिप्टेंट टाइप्स लेना है, ओनली द बिलोइंग फॉलोइंग रिसिप्टेंट्स, यूजर विद द एक्सचेंज मेल बॉक्स, क्या आपको डिफाइन करना है वो हिसाब से वो ईमेल एड्रेस को इसमें ऐड करेगा। इसको हम बोलते हैं डायनामिक मतलब उसके कंडीशन। 5 ऑप्शन है, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं क्या ऐड रूल से? नहीं नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ये तो डिफॉल्ट दिया है इसने इतने। अभी अभी यहाँ पे और रूल बना सकते हैं, मेंबर इन दिस ग्रुप विल बी डिटर्ड बाय द रूल्स यू सेट बिलो। यहाँ पे अगर रूल अगर अपन क्रिएट करना है तो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ तो डिफॉल्ट उतने हैं, यहाँ पे अगर रूल है तो यहाँ पे और उसका सिलेक्शन देगा। रूल रूल दिखाइए ना, कौन सा है एक बार, देखो कैसे कैसे? ये एट्रीब्यूट वाइज है, कस्टम हाँ। एट्रीब्यूट। अगर मैंने वन को अगर डिफाइन किया फॉर एग्जांपल, हम्म, यहाँ पे वो कस्टम एट्रीब्यूट वन का, अभी जैसा डिपार्टमेंट समझ लो, वहाँ पे एचआर है कस्टमर एट्रीब्यूट में, ठीक है। हाँ, तो वो फिर वो डिटेक्ट करेगा एट्रीब्यूट एचआर का, वो हिसाब से इसमें ग्रुप में ऐड करना स्टार्ट होएगा। तो जितने मतलब भी यूजर है वो। हाँ एग्जैक्टली वो एट्रीब्यूट में। तो ये वही हो गया, कंडीशनल है ये। अपन क्या कंडीशन रूल सेट करते वो हिसाब से ये ऑटोमेटिक ऐड करेगा, इसको डायनामिक वो बोलते हैं। एट्रीब्यूट कैसे ऐड करना है मतलब वो वो? वहां पे आएगा, मैं तुमको मेल बॉक्स में बता दूं, एक मिनट। हाँ, ये तुम ये एट्रीब्यूट समझो, वहां पे एक अपन मेल बॉक्स को क्लिक, तो यहाँ पे अपन जाएंगे। ये तो समझ गए एट्रीब्यूट का। हाँ। यहाँ पे एंटर वर्ड एचआर अगर मैंने अच्छा। समझ ये कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अच्छा एंटर आ वर्ड, गया, हाँ। एचआर आया, मैंने सेव हाँ किया। हाँ। कौन सा प्रीफिक्स बोला, द कंडीशन इज इनकरेक्ट, द वैल्यू कांट बी एम्प्टी, मतलब हमने डाला था सेव नहीं हुआ एंटर। क्या? ओके, ओके ये अच्छा, ये ऐड नहीं किया हमने, सिर्फ एचआर बोल के ऐड नहीं किया उसको, हाँ। ठीक है। ये ठीक है, ये मैंने ऐसा एचआर किया। तो अभी यहाँ पे मेल बॉक्स है, ठीक है। तो इसको अपन हाँ। प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, जैसा कि तुम्हारा ही ओपन करेंगे। एक में इसको रिस्टार्ट हो रहा है। हर सेल को ओपन करता हूँ, एडिट, यहाँ पे मोर ऑप्शन दिख रहा है, कस्टम एट्रीब्यूट, ठीक है। हाँ। एडिट, यहाँ पे नंबर वन पे एचआर डालूंगा, ठीक है। तो ये हाँ। वो डिटेक्ट करेगा, फिर वहां पे ऐड करेगा, इसको इस तरह का काम करेगा ये। इसको हम बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट। सर मतलब वो हमारे क्या पॉलिसी है, हम्म मतलब जितने भी वेंडर है ना, हम्म। उनको आउट मतलब इंटरनेट का एक्सेस नहीं, तो हम इधर से डबल क्लिक करते जनरल में जाते हैं ना, तो एक्सेस डिनाई वैसा एट्रीब्यूट आता है उधर। नहीं, इंटरनेट का एक्सेस के लिए यहाँ पे नहीं है, उसका ग्रुप पॉलिसी के नहीं थ्रू आता नहीं है वो। नहीं, हाँ हाँ अभी हम आपने कैसे ये चार डाला वहाँ पे, हाँ। वो उनका एक्सेस डिनाई ऐसा आता है तो वो आपको एट्रीब्यूट एक्सेस मतलब। नहीं है एडी का, आपको एंटर इसका एडमिन का एक्सेस चाहिए। आपको कितना एक्सेस है उस पर डिपेंड करता है। नहीं आपने वेंडर में, हमें हमें नहीं। हाँ हाँ। वेंडर हम अगर वेंडर जितने हैं ना, उनका मेल आईडी अगर चेक करते हैं ना, वो अच्छा। पूछते हैं हमारा इंटरनेट से हो नहीं रहा, हम अगर क्लिक करते हैं हम्म, तो जनरल पे वो एट्रीब्यूट्स पे नीचे आते हैं ना, तो हमें हाँ समझ हाँ। जाता है कि एलो अच्छा, एक्सेस डिनाई रहेगा, तो उसको एक्सेस नहीं है इंटरनेट का ऐसा। करेक्ट करेक्ट, समझा मैं। तो वो पॉलिसी वो लोगों ने वैसा बना के डाल दिया है, उसके लिए वैसा है वो, ठीक है।
तो ये आप कस्टम एट्रीब्यूट का समझ गए राइट, कैसा ये वर्क कर रहा है, लॉजिक समझे ना आप? हाँ ठीक है। तो डायनेमिक ग्रुप का वो काम है, मतलब अपन जो रूल सेट करे जो वो हिसाब से वो काम करता है। अपना नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कैसा काम करता है, अपन मैन्युअली हम लोग ऐड करते हैं, किसको ऐड करना है रिमूव करना है, करेक्ट? हम्म, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट्स पे जाए हम, या और कुछ कहीं पे हाँ डाउट है आपको? नहीं ठीक। नहीं। हम्म। अभी कॉन्टेक्ट्स मतलब पता है ना आपको कैसा रहता है, क्या कई यूज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कई के लिए यूज करते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट्स? 1 मिनट। हम्म। हेलो, हाँ उमर, थोड़ा सा मैं मीटिंग में हो रहा है, 10-15 मिनट लगेगा। मैं आपको कॉल एक आधे घंटे के अंदर में करता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर करके देखिए। हाँ, टाइम है प्रायोरिटी पर, मतलब हेलो 48 आवर्स रहेगा, 24 आवर्स का रहेगा, एकदम लो हेलो। प्रायोरिटी का है। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा, हाँ सर बोलिए। तो करेंगे अपन वो स्काइप के हाँ हाँ, मेल करके कुछ इंफॉर्मेशन है पहले, मगर तुम चेक करो बैकएंड से, जब भी वो कर सकते हैं। यूजर में ना, मैं दिखा तो तुमको स्क्रीन शेयर करती, तुम स्काइप पे अपन कनेक्ट कर सकते हैं बाद में, चलेगा? ठीक है, एक जैसा ये खत्म होने पर कॉल करता हूँ, आप कनेक्ट करेंगे, मैं बताऊँ आपको क्या करना, ठीक? हाँ हर्षल हुआ। हाँ ओके। सो कॉन्टेक्ट मतलब कैसा है, अभी कोई तुम्हारे पास वेंडर्स रहेंगे ना, थर्ड पार्टी के, कोई हाउसकीपिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, ये ऐसा कुछ भी रहेंगे, करेक्ट ना? वो हाँ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, कुछ भी सफाई हाँ का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना रिसोर्स को यूज नहीं करने देते उनको, राइट? मतलब उनका मेल बॉक्स वगैरह उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा, उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे क्रिएट रहेगा। तो बट हमको प्रॉब्लम क्या होगा, उनका ईमेल एड्रेस याद रखने में बहुत बड़ा इश्यू है, उनका कुछ भी पर्सनल ईमेल एड्रेस, मतलब उनका कंपनी का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल, एक हाउस कीपिंग वेंडर का मैं कांटेक्ट बनूंगा, हाउस कीपिंग ऐसा बोल के, हाउस कीपिंग, ठीक है? ऐसा मैं लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर वेंडर भी लिखूंगा, या जो भी एक अपने को समझ। तो आपको क्या होगा, हाउस कीपिंग रिलेटेड कुछ भी आपको करना है, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में ये पॉपअप होएगा एड्रेस, तो आप मेल करके उसको जो भी आपको ये रिक्वायरमेंट है या कुछ मेल करना है वो आप इसको कर सकते हैं, राइट? तो आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका, यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ तो। बट इसका ईमेल एड्रेस इसका एक्सटर्नल रहेगा, मतलब जो मेल आप भेजेंगे तो कहाँ पे जाएगा, उसके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, आपके मेल बॉक्स, मतलब आपके इन्वायरमेंट में इसका मेल बॉक्स नहीं रहेगा। समझ गए? जीमेल हाँ, के। मतलब मैंने एग्जांपल, जीमेल मेरा, मतलब उसका कंपनी का ईमेल एड्रेस यहाँ पे रहेगा, हमारा हाँ हाँ। ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस या मेल बॉक्स नहीं रहेगा उसको। तो अपना अच्छा रिसोर्स यूटिलाइज नहीं होएगा इस इन शॉर्ट। अच्छा। सिर्फ ये एक कांटेक्ट बनेगा अपने को सर्चिंग के लिए, अच्छा मतलब ग्लोबल लिस्ट में आ जाएगा वो। ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में आ जाएगा। सिर्फ अपना क्या है, आप ये जाएंगे ये हाउस कीपिंग वेंडर सर्च करेंगे तो ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में आएगा। बट जब ये मेल आप भेजेंगे तो किसको जाएगा, ये डिजिटल classes@gmail.com को जाएगा, मतलब उसका जो भी एस एम टी वेंडर यहाँ पे सेट रहेगा उसको जाएगा। यही इसका इतना ही काम है, इसका मीनिंग यही है। मतलब आपका टेम्पररी वेंडर रहेगा, बाद में आप ये कॉन्टेक्ट को डिलीट कर सकते हो, तो आपका पास जो मेल बॉक्स वगैरह कुछ बनेगा नहीं इसका। समझ गए? क्लियर राइट? यस। तो हम जाएंगे शेयर्ड मेल बॉक्स पे। ऑलरेडी हम शेयर्ड मेल बॉक्स का भी डिस्क्रिप्शन किया है, जैसा कि मैं HR शेयर्ड मेल बॉक्स बोल के बनाता हूँ, क्योंकि HR का नॉर्मली मल्टीपल लोगों के साथ में रहता है, मतलब सभी का होता है, बट अपने को एग्जांपल ये अच्छा बैठता है तो अपन इसको ले लेंगे। HR शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने को इंडिया, पुणे, ओके।
यहाँ पे द फॉलोइंग यूजर्स हैव परमिशन टू व्यू एंड सेंड मेल फ्रॉम दिस सेव। तो अपने को यहाँ पे किसको ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। मैं हर्षल को ऐड करता हूँ, तुम बाद में भी अपन कर सकते हैं, अभी भी अपन ऐड कर सकते हैं। मतलब व्यू एंड सेंड और हाँ हाँ, द फॉलोइंग यूजर्स हैव परमिशन टू व्यू एंड सेंड मेल, मतलब देख भी सकता है, राइट, मतलब रिसीव भी और होगा और रिसीव, सेंड भी हाँ करेगा। फिर अच्छा। सेंड ये भी करेगा, ठीक है। तो मतलब इसको एक्सेस दिया ऐसा, इन शॉर्ट, हाँ वो मतलब हाँ वही। शेयर्ड मेल बॉक्स। मोर ऑप्शन में हम जाएंगे। मतलब मेंबर ऐड कर रहे वही है ना, बाकी कुछ नहीं। एग्जैक्टली हाँ, मेंबर के जैसा ही समझ, हाँ। मेल बॉक्स डेटाबेस का अपन किस पे उसको क्रिएट करना है, वो अपने को देना है। इसका मैंने भी आर्काइव होता है क्या सर? इसका आर्काइव होता है ना, यहाँ पे है देखो ऑप्शन, दिख रहा है ना, मतलब जितने भी मेल बॉक्स होते हैं उसका, हाँ मतलब रूम हाँ मेल नहीं, बॉक्स रूम मेल बॉक्स और नहीं होता है, शेयर्ड मेल बॉक्स और यूजर मेल बॉक्स का आर्काइव होता है। ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का नहीं हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का नहीं होता है, नहीं होता। नहीं होता, वो स्टोर नहीं करता है आपके मेल, सिर्फ आपको भेजता है। अभी उसमें जो 1000 यूजर है, तो 1000 को भेजेगा, बट वो कहाँ पे मेल स्टोर नहीं होएगा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप तो में। सर उस अगर वो करते वक्त हम मेल बॉक्स डेटाबेस देते हैं ना? नहीं ना, कहाँ पे देते, मैं नहीं बताओ देते। यहाँ, नहीं ना, ग्रुप हम क्रिएट किए, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को कहाँ मेल में, मैं आपको हर टाइम नहीं बताता हूँ, नहीं चाहिए तो वहाँ पे नहीं 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 देते, नहीं देते। ओल्ड वीडियो देख लूंगा मैं। हाँ नहीं, यहाँ पे अपन मैं दिखाऊंगा ना आपको, जस्ट ये होने के बाद ग्रुप जस्ट हाँ याद करो मेरे को। ओके, यहाँ पे मैं हाँ सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये शेयर मेल बॉक्स हुआ, इसमें अगर अपने को प्रॉपर्टी देखना है तो देख सकते हैं, जनरल एज इट इज है, हाइड कर सकते हैं अगर एड्रेस लिस्ट से हाइड करना है तो। मेल बॉक्स डेलीगेशन है, फुल एक्सेस, सेंड एज, जो एक्सेस जैसा तुमको देना है सेम। मेल बॉक्स में सभी 3 डिफॉल्ट है, सेंड एज, फुल एक्सेस, ठीक है। ये 3 आपको नॉर्मली मिल ही जाता है। यहाँ पे फुल एक्सेस है, सेंड एज है, 2 ही है, सेंड ऑन बिहाफ का नहीं है, ठीक है इसमें, बाकी का दूसरे सर। में। और एक डाउट था सर, हमारे इधर में क्या वो पावर सेल से बनाते हैं ना, मतलब वो तो बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं रहती, नहीं, मतलब राइट ग्लोबल राइट, डिस्प्ले हाँ करो ये करेक्ट, करो, तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक बन जाता है क्या बन पूरा जाता है, हाँ पॉलिसी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो पार्सल से वो कमांड से भी कर सकते हैं, तो सिंपल रहता है वो वो थोड़ा। 3 ही कमांड रन करते वो पूरा का पूरा हो जाता है, वेंडर का हाँ, जितना पॉलिसी लगाना है वो सब लग उसको जाता है। लगा के छोड़ देते हैं, राइट, करेक्ट। ये डेलीगेशन के रिलेटेड। बाद में मेल बॉक्स यूसेज, अभी लास्ट लॉगन अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए नहीं बता रहा टाइम स्टैम्प। अभी ये 2 GB का हमारा कोटा है, क्योंकि हम लोग डेटाबेस पे 2 GB अप्लाई किया, करेक्ट ना, उसके लिए टू हाँ जीबी बता रहा है अपने, अभी यूज नहीं, 0 यूज है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एज इट इज, जो अपना स्ट्रीट सिटी वगैरह ये सब कुछ, जिप कोड, कंट्री वगैरह, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ है चीजें। ऑर्गेनाइजेशन सेम अपना टाइटल, कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसा कि HR है, डिपार्टमेंट HR टीम कुछ भी डाल सकते हैं आप, कंपनी XYZ, ये डिटेल्स अपन रख सकते। मैनेजर अगर अपने को, इसका मैनेजर को भी, किस इसका जो भी मैनेजर है, अगर हर्षल ऐसा में, तो इसको असाइन कर सकता हूँ मैनेजर, वो दिखेगा। और ईमेल एड्रेस तो जो भी एलियास जो होता है, वो अपना HR शेयर्ड मेल बॉक्स है, वही ईमेल एड्रेस स्टैंपिंग हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक। बाद में मेल बॉक्स फ्यूचर्स में पॉलिसीज है डिफरेंट, शेयरिंग पॉलिसी डिफॉल्ट है, रोल असाइनमेंट पॉलिसी है, रिटेंशन पॉलिसी अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं, ये डिफॉल्ट पॉलिसी अपन दे सकते हैं, मरम पॉलिसी। एड्रेस बुक पॉलिसी जो भी हमने बनाया नहीं, डिफॉल्ट ही है जो भी है। और कनेक्टिविटी किस तरह करना है यहाँ पे, वो थोड़े फीचर्स है, मतलब आउटलुक ऑन द वेब ऐप पे एक्सेस करना है, डिसेबल करना है, एनेबल करना है, ये कनेक्टिविटी अपने को डिसाइड करना है। IMAP है, डिसेबल करना है, एनेबल करना है। POP3 है, एनेबल करना है, डिसेबल करना है। मैपी एनेबल करना है, डिसेबल करना है। लिटिगेशन होल्ड एंड आर्काइव भी है इसमें, ठीक है। लिटिगेशन होल्ड पता है आपको क्या होता है? हाँ वो डिलीट नहीं होते नहीं तो हाँ लिस्ट पे ना। एग्जैक्टली, आपने अगर लिटिगेशन होल्ड में डाले तो मेल्स जो भी डिलीट करेंगे वो डिलीट नहीं होते, आप वो एडिटिंग के लिए या लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वो मेल, सिर्फ E3 लाइसेंस यूजर के लिए रहता है ना? हाँ E3 के लिए रहता है बराबर, ठीक है। तो ये, और मेल फ्लो में है डिलीवरी ऑप्शन, मतलब फॉरवर्डिंग वगैरह जो भी कर सकते हैं अपन,
ईमेल, ये मेल्स किसी और को भी थर्ड दूसरे ईमेल एड्रेस को फॉरवर्डिंग करना है तो अपन ने वो देखे थे ना पर्सनल ईमेल बॉक्स में, उसी तरह ये हाँ हाँ फॉरवर्डिंग भी एनेबल कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ से और मेल फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस सर, है। ये हाँ बोलो। आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या? हाँ करेंगे ना अपन, ये बाद में अपन क्लाइंट। नहीं, मोबाइल मोबाइल में ये इसका ऑप्शन नहीं था ना इसका? इसका किसका? मोबाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नहीं क्या ऐसा? मोबाइल में नहीं है ये, इसका एक्टिव सिंक नहीं है इसमें। नहीं है ना? नहीं है। सर, ठीक। और एक्टिव सिंक के वो सिर्फ आउटलुक मतलब मोबाइल ऐप के लिए यूज होता है, या आउटलुक वेब नहीं एक्सेस के नहीं, लिए भी सिर्फ होता है मोबाइल मोबाइल ऐप के पे? लिए, एक्टिव सिंक मोबाइल ऐप के लिए होता है। अच्छा। हाँ, और दूसरा फ्यूचर उसका नहीं है। अगर एक्टिव सिंक अगर डिजेबल है तो सिर्फ मोबाइल पे आपका चलेगा नहीं, बाकी का आउटलुक और आउटलुक वेब ऐप चलेगा, दोनों क्लाइंट से सर, यूज। और एक वहाँ पे ऑप्शन था, डिसेबल OWA फॉर डिवाइसेस ऑप्शन था। हाँ, तो वो मतलब वो ओ डब्ल्यू स्पेसिफिक मतलब डिवाइसेस, आउटलुक, आउटलुक वेब ऐप, आउटलुक वेब ऐप जो ब्राउजर से अपन करते हैं ना, वेब एक्सेस। मोबाइल और लैपटॉप हाँ दोनों से वो डिसेबल कर हाँ देगा, डिजेबल ऐसा है? करते, राइट करेक्ट। अच्छा। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है डिलीवरी, अपना कितना मैसेज भेजना है वो हमने देखा। ठीक है, ये अब किसको एक्सेप्ट करना है सेंड, ये तो नॉर्मल डिफॉल्ट रहता है, इसको हम कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करते क्योंकि सभी से मेल आना चाहिए, राइट। ऐसा हाँ अपन रिस्ट्रिक्ट बहुत ही रेयर केस में वो होता होगा, बट नॉर्मली नहीं हो करते हम लोग। ठीक है, ये मैसेज रिस्ट्रिक्शन में भी साइज डिफाइंड है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे अपन, जब भी वो कल किए थे ना यूजर मेल बॉक्स पे 500 MB, मतलब 5 MB 10 MB जो भी, ये रिस्ट्रिक्शंस अपन डाल सकते हैं, डालना है तो KB करेंगे तो 5 MB का होता है। ठीक है, तो ये अपन डिफाइन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस है भेजना कितना। ये मेल बॉक्स के फ्यूचर्स है ये। अभी अपने को मेंबर ऑफ भी है, तो आप किसी को भी ऐड अगर करना है वहां से अपन एडी वहां से अपन कर सकते हैं, राइट। तो अपन ने देखा था लास्ट कल इसको, एडिशन ग्रुप मेंबर्स किसको बनाना वगैरह है तो यहाँ पे अभी हमने किसी को बनाया नहीं, उसके लिए डिस्प्ले नहीं हो रहा। हाँ मेल टिप बाय डिफॉल्ट, जो भी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन जब भी भेज रहा है मेल, तो एक पॉपअप जैसा मेल टिप्स आएगा उसको, करेक्ट। हाँ तो ये शेयर्ड मेल बॉक्स का प्रॉपर्टीज है। अभी है माइग्रेशन। माइग्रेशन तो आपको ये ऑन प्रेमिसेस टू ऑनलाइन करना है या ऑनलाइन टू ऑन प्रेमिसेस करना है, वाइस वर्सा। वो सिनेरियो में ये तुम्हारा वो टैब जो है वो काम में आएगा। जैसा कि ऑफिस 365 को आपका ऑन प्रेमिस का मेल बॉक्स को माइग्रेट कराना है, हाँ। देन अच्छा, दिस हमारा तो वही चल रहा है अभी, वाइस। मुझे तो उसी प्रोजेक्ट में डालने वाले हो हाँ क्या? 2 मंथ के बाद। हाँ, ओके उसकी वजह से मैं थोड़ा सुना है। ओके, ये माइग्रेशन का है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑप्शन है देखो, न्यू, यहाँ पे दिख रहा है मूव ए डिफरेंट डेटाबेस, मूव टू दिस फॉर्ट। अभी एक्चुअली ये मूव टू एक्सचेंज ऑनलाइन क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन नहीं है अभी फिलहाल एक्सचेंज ऑनलाइन हाँ के हाँ साथ में। उसके लिए वो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आ रहा है दूसरा डेटाबेस को मूव करना है या दूसरे फॉरेस्ट को मूव करना है, राइट। तो वो ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको अपन इंटीग्रेट करेंगे पूरा इसका फंक्शनलिटी बनेगा ऑफिस 365, तो जब ये यहाँ पे मूव टू एक्सचेंज ऑनलाइन बोल के एक ऑप्शन और एक आएगा, समझ गए। मूव टू दिस फॉरेस्ट मतलब वो? फॉरेस्ट मतलब सेम फॉरेस्ट, मतलब ये एग्जिस्टिंग वाला। अभी मैंने करूंगा यहाँ पे, अभी हर्षल वगैरह एक्चुअली सर्च होना चाहिए। नहीं नहीं, तो ये अपने को दूसरा, एक मिनट, यू कैन मूव ए मेल बॉक्स फ्रॉम ए सोर्स एक्सचेंज फॉरेस्ट टू, अच्छा ओके, अपन लिंक्ड मेल बॉक्स जैसा था ना सिनेरियो, हाँ, दो ये दूसरे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हाँ जाएगा। एग्जैक्टली, तो वो इसके लिए वो कॉन्सेप्ट है। ये अपने को यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होएगा, ये अपना पहले वाला ये ऑप्शन आएगा। पहले वाला, अगर दूसरे डेटाबेस को मेरे को मूव करना है, तो अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल देखो इतने सारे अपने मेल बॉक्स, किसी हर्षल को लेगा या किसी और को मैं ले लूंगा, तो वो सेलेक्ट करके जस्ट
यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ डेटाबेस पॉप, वो CSV फाइल क्या है सर वो? CSV फाइल मतलब मोर देन वन अपने को करना है, जैसे 100-50, तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे ब्राउज करके वो CSV में फॉर्मेट में डालेंगे, जैसा टेक्स्ट में या CSV में। वो मैं 100 है समझ लो, अभी 100 को तो आप मूव नहीं कर सकते वन बाय वन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? हाँ हाँ तो हाँ। बल्क में अगर तुमको करना है तो CSV का यूज करने का, तो वो मतलब वन बाय वन वन उसमें बाय, CSV फाइल मतलब वो एक्सेल? हाँ एक्सेल जैसा ही, एक्सेल जैसा ही यूजर नेम बोल के आता है ना, हर्षल, मुस्तफा, दूसरा XYZ, ऐसा ही एक के नीचे एक नीचे। मतलब उनके सारे मेल आईडी रहने चाहिए क्या, हाँ मतलब मेल आईडी जिसमें रहना ओनली चाहिए, हाँ मेल आईडी रहना चाहिए, नहीं तो वन बाय अलियास वन? नेम होना चाहिए। तो अलियास नेम से आइडेंटिफाई करें, जैसे हर्षल डॉट पगार ये रहना चाहिए, नहीं तो ईमेल एड्रेस हर्षल डॉट पगार एट द डिजिटल ट्रेनिंग डॉट इन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक लेके वो मूव करेगा, मतलब बल्क में आपको करना है तो। सर क्योंकि वो ऑप्शन मेल आईडी क्रिएशन के लिए भी ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या बल्क वाला बल्क में? है ना, हाँ। मेरे ख्याल बल्क वाला भी है, एक मिनट अपन बता दो। बल्क में भी यूजर मेल बॉक्स, मेरे ख्याल से बल्क का एक्चुअली अपना एक्सचेंज ऑनलाइन में तो है, बट मेरे को इसमें स्क्रिप्ट के थ्रू जाना पड़ेगा शायद, ये मैन्युअली, मतलब ये इंटरफेस से नहीं है, बट उसका कमांड है स्क्रिप्ट से, मतलब एक कमांड ऐड मेल बॉक्स और CSV का इनपुट देने का, फिर वहां से एक एक लेते जाएगा, फिर वो क्रिएट जाएगा, बट यहाँ पे कंसोल में नहीं है आपको ये मतलब वो PowerShell। जो लोकेशन लोकेशन देना पड़ेगा, मतलब हाँ हाँ, कमांड? डेटाबेस का लोकेशन, और वो अपना कहाँ से फाइल लेना है, इनपुट फाइल जो है CSV, वो देना पड़ेगा, वहां से फिर इनपुट लेते जाएगा, फिर वो क्रिएट करते जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सर, वो वो अब इस हमारे इसमें वो भी आएगा क्या, कम पावर सेल का? हाँ PowerShell का हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे ना, मतलब वो थोड़े कमांड्स कैसा क्या ऐड मेल बॉक्स कैसा करते, रिमूव कैसे थे, थोड़ा बहुत तो PowerShell के कमांड हम लोग सीखेंगे एक्सचेंज ऑनलाइन में। एक्सचेंज ऑनलाइन में ज्यादा यूज है उसका, ऑन प्रेमिस में तो बहुत ही कम है उसका। एक्सचेंज ऑनलाइन में अपन PowerShell को कैसा कनेक्ट करना है, कैसा तुमको MSOL यूज करना है, गेट हाइपन MSOL यूजर, गेट हाइपन मेल बॉक्स, ये सब स्टैटिस्टिक्स ये वगैरह अपन वो देखेंगे कनेक्ट करके PowerShell को। हाँ। ठीक है, आप कुछ ग्रुप में क्या तो अपन क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ, तो मेरे को ध्यान, वो मेल बॉक्स, हाँ मेल बॉक्स बनता है क्या बोले थे, मेल बॉक्स अब नहीं बनता। डेटाबेस, हाँ। हाँ डेटाबेस नहीं रहता, एक मिनट देखेंगे अपन वो, देखो कहाँ पे है, नहीं राइट, मेंबर्स है, मेंबरशिप अप्रूवल है, डिलीवरी मैनेजमेंट है, मैसेज अप्रूवल है, ईमेल ऑप्शन है, मेल टिप्स है, डेटाबेस नहीं मतलब इसका स्टोरेज नहीं है। ये क्या करता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्चुअली, जैसा मेल्स एम्प्लॉय का एक डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, वो मेल सभी को तुमको भेज देता है, बट इसका स्टोरेज कहीं पे नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका मतलब ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव ग्रुप का भी नहीं रहेगा, मतलब वो ऑफिस भी से सिर्फ ग्रुप भी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा? रहेगा, स्टोरेज नहीं रहेगा। वो ग्रुप ही डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं, करेगा? सिर्फ आपको स्टोरेज कहाँ पे मिलेगा, मेल बॉक्स में मिलेगा, और शेयर्ड मेल बॉक्स में मिलेगा, रिसोर्स में भी सिर्फ मीटिंग का ही वो मिलेगा, नॉर्मली वो जो अच्छा। रिक्वेस्ट आते हैं, बाकी का तो स्टोरेज उसमें, मतलब उसमें मगर है स्टोरेज, क्योंकि नहीं, वो उसका मीटिंग, भी नहीं है, रिसोर्स का भी नहीं है ना सर शायद? हाँ हाँ रिसोर्स का भी वो नहीं आएगा, बट तुम एक्सेस अगर लेंगे तो वो मिलेगा। अभी जैसा कि मैंने उसका डेली का एक्सेस लिया तो मेरे को मीटिंग इनवाइट का ये आएगा, इन्फो आएगा, मतलब स्टोरेज उसका भी नहीं है, डेटाबेस नहीं है नहीं, उसका भी। हाँ उसका नहीं, वो हमारा ही मेल बॉक्स भरेगा, उसका नहीं एग्जैक्टली, भरेगा वो। करेक्ट हाँ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये इस तरह का रिसिप्टेंट है, तो अपन थोड़ा सा परमिशन का देख के एंड करेंगे, चलेगा या कल क्या प्लान है? कल करते सर, अभी चलेगा, थोड़ा। नो नो प्रॉब्लम, नो, कल अपन कंटिन्यू, कल 9 बजे और कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, अभी कुछ डाउट है आपको इससे पहले, अगर कुछ है तो पूछो, तो डिस्कशन करके 2 मिनट अब। 1 मिनट है। इसको वही सर, क्या था, वो डिनाई एक्सेस, वो एट्रीब्यूट्स में आपने वो डाला था ना वो, हाँ हाँ, से मेल बॉक्स, नॉर्मल मेल बॉक्स में यूजर और के। हाँ हाँ, हाँ हाँ, एडिट में जाके। एक मिनट, हाँ। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन आप याद रखो कल नोटपैड में,
कैसा ठीक है देखना ठीक है। है, थोड़ा सा रिस्टार्ट हुआ शायद, 1 मिनट अगर ओपन होता है तो देखेंगे। वो ठीक है डिनाई काका, का, मैं, हाँ बोलो हाँ बोलो, मैं एक बार वो बोलता हूँ फिर। चलेगा कल बोल दो, ठीक है, टाइम हाँ लगेगा नहीं। हाँ, कल अपन और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके चलो बाय।